One draw first. All the videos should be on, off videos will be out. Sum number 21, Moon Limited. See what are they given? Moon Company Limited with an authorized capital of rupees 20 lakhs divided into 20,000 equity shares of 100 each. So authorized capital, that is just a piece of information. As we discussed, that is upper limit towards which you can raise the capital. Okay. So will this authorized capital be same throughout the lifetime of the company, or can they change the limit? They can change. They can change. Okay. The authorized capital ka limit can be changed in the annual general meeting of the shareholders. Okay. With special majority. तो ऑथराइज कैपिटल अपर लिमिट बढ़ा सकते हो आप फ्यूचर में कभी ज्यादा पैसे रेस करने हैं तो ओके। तो ऑथराइज कैपिटल का ज्यादा टेंशन लेना नहीं है आपको। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, फॉर्मेलिटी सेक का कैपिटल होता है, ठीक है। वो पहले ही कंपनी थोड़ा ज्यादा लिमिट रखती है और फिर आगे चाहिए तो बढ़ा भी सकती है, कोई उसका प्रॉब्लम है ही नहीं। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स? इज इट 10 और 100? Is the face value of shares 100 rupees. It issued 10,000 equity shares of 100 each at a premium of 30 per share. So how is the issue being made? Is the issue done at par, premium or discount? How is the issue being made? यहाँ पे issue कैसे हो रहा है आपका? Sorry, प्रीमियम 100 रुपए का शेयर 130 रुपए में इश्यू किया जा रहा है, 30 रुपीज प्रीमियम। Can you read that second line? So this is nothing but issue at premium. Okay, shares are getting issued at premium. Okay. So yesterday we discussed. Do you remember what was premium last lecture? Premium का मतलब क्या होता था? What do you mean by premium? The shares are issued at a higher price or a lower price? Higher price. Higher price. Face value से higher price पे जब आप issue करते हो, then it is called as issued at premium. Okay. और फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इश्यू करते तो इट इज कॉल्ड एज इश्यूड एट डिस्काउंट। वी इश्यू एट डिस्काउंट इज नॉट अलाउड आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो इश्यूड एट डिस्काउंट फिर भी आपको सिलेबस में है, विल बी डूइंग दैट, बट अदरवाइज इश्यूड एट डिस्काउंट इज नॉट अलाउड इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। रिमेंबर दैट you can issue the shares only at par or at premium. How does the company determine the premium? That also we discussed in the last lecture. Do you remember? Company premium कैसे decide करती है? Earning per share, PE ratio. Earning per share basically depends on the profits of the company. जितना कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना it can demand a higher PE. Okay, and plus it also depends on the market situation. Demand, supply, the nature of the market, optimistic, pessimistic. Okay, recession चल रहा है, boom चल रहा है, depression चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके हिसाब से it can raise the money in the market more or less. So here they are issuing the shares at premium. Okay, booming period it will fetch a higher premium, recessional period it will fetch a lower premium obviously. और ये प्रीमियम जो है 30 रुपीज, विल यू एड दिस प्रीमियम टू योर कैपिटल? क्या ये प्रीमियम कैपिटल का हिस्सा है कि अलग से दिखाना? अलग से दिखाना। रिमेंबर वी शोड इट अंडर अ सेपरेट अकाउंट, दैट इज शेयर प्रीमियम अकाउंट। ओके, दिस प्रीमियम इज शोन अंडर अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड शेयर प्रीमियम अकाउंट, which is a reserve of the company, which is a profit of the company. Which type of profit is this? Capital profit or revenue profit?
share premium account is which type of profit? Capital profit. It's a capital profit, lump sum profit. Once in a while you receive that kind of profit. Okay, घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है, long term benefit वाला profit है, तो liability में जाएगा, directly reserves में जाएगा, under the head of share premium account. Under the head of share premium account. Is that clear? So प्रीमियम, ओके, 30 रुपीज का प्रीमियम है, मतलब अभी हर एक शेयर होल्डर को 100 रुपया नहीं देना है, हर एक शेयर होल्डर को 130 रुपया देना है टू द कंपनी. कीप दैट इन माइंड. ओके, एवरी शेयर होल्डर इज सपोज टू पे 130 रुपीज टू द कंपनी, फेलिंग विच हिज शेयर्स विल बी फोरफिटेड. अगर वो 130 रुपए नहीं भर पाए, पहले क्या होता था 100 रुपए नहीं भरता था तो फोरफिट करते थे, अभी 130 रुपए पूरे भरने पड़ेंगे उसको विथ प्रीमियम. अगर वो नहीं भर रहा है तो हिज शेयर्स विल बी फोरफिटेड. ओके, सो कैंसिल हो जाएंगे उसके शेयर्स 30 रुपया प्रीमियम पे. इसका ब्रेकअप आपको दिया हुआ है. इफ यू रीड द सम प्रॉपर्ली, इट इज 60 ऑन एप्लीकेशन, then 20, oh sorry, it is 30 on application, it is 30 on application, then it is 60 on allotment, and 20 on first call, and balance on final call. 20 on first call and balance, मतलब कितना होगा balance final call पे? Can you guys tell me what will be the balance on the final call? 20. How come 20 rupees? It is, see, 30 plus 60 90 plus 20 110 plus 20, क्योंकि total चाहिए 130. This will be second and final call. Second and final call 20 rupees. अभी यहाँ पे question is silent. अपने को मालूम नहीं है प्रीमियम किधर पड़ा हुआ है. So what will you assume? Where is the premium lying? Allotment. Allotment. Okay, कुछ नहीं दिया है तो always and always remember your premium is lying with allotment. So allotment का breakup is actually 30 plus 30, 30 towards capital and 30 towards premium. Okay, 30 towards capital and 30 towards premium. Is this clear? Okay. So any doubt till this point? What is the face value? What is the premium? What is the breakup? And where is the premium lying? Where you will transfer the premium? सब चीजें clear हुई? Premium profit है, separate account में जाएगा, that is share premium account. Okay. और प्रीमियम के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है, कौन से पार्ट में पड़ा हुआ है, तो you assume that it is lying with allotment. You assume that it is lying with allotment. ठीक है? Let's begin with the journal entries. Number 1, first journal entry. Pashwa, can you tell me the first journal entry? Bank to equity share application account. Bank account debit to इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अभी ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन और मुझे बताना आपको कितने शेयर के एप्लीकेशन मिले. कंपनी ने तो 10,000 शेयर इश्यू कर दिए थे, बाकी आगे क्या दिया? इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 9,000 shares. So what money you will write under application? Pashwa? Okay, Ishita, what amount will come under application? 9,000 into 30. Very good, perfect. 9,000 into 30, that comes to 2,70,000 rupees. ठीक है? क्वेश्चन में देखो क्लियर कट दिया हुआ है कि आपने इश्यू तो 10,000 शेयर्स किया था, but applications were received only for 9,000 shares. So it was undersubscribed. The issue got undersubscribed. Undersubscribed होने की वजह से कम शेयर्स आ गए, और जब भी कम शेयर्स आते हैं तभी कोई एक्सेस पैसे का लफड़ा होगा. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टिंग एक्सेस मनी? नो, आपको पैसे ही कम मिले तो उधर से ही आपकी गाड़ी शुरू होगी, and all the entries would now be passed for only 9,000 shares. Okay, this we have done earlier also. The simple case of under subscription.
तो 9,000 शेयर्स का एंट्री करना है. सेकेंड एंट्री क्या होना चाहिए साहिल? कैन यू टेल मी द सेकेंड एंट्री? equity share application to equity share capital. Equity share application to equity share capital. How much? 2,70,000. Perfect. No problem over there. जितना आया था पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया. कुछ एक्सेस नहीं, कुछ बैंक नहीं, कुछ अलॉटमेंट नहीं. Simply equity share application transferred to equity share equity share capital. तो जब भी आपके पास कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो लफड़ा कम हो जाता है. ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो हम लोग वो एक्सेस पैसा एडजस्ट करते, राइट? या तो रिफंड करते या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करते प्रोरेटा करके. ऐसा कुछ इश्यू नहीं है यहाँ पे. तो इट इज सिंपली शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. अंडर सब्सक्रिप्शन है, जितना पैसा आया ट्रांसफर कर लो. थर्ड एंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. सुहानी, can you tell me the third entry? Equity share allotment account to equity share capital account to share premium account. Very good. Equity share allotment to equity share capital to share premium. ये सबसे important point है यहाँ पे. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, if you remember. ये जो प्रीमियम नाम की चीज होती है बड़ी खतरनाक चीज होती है. सिली मिस्टेक हो जाते हैं यहाँ पे. प्रीमियम जो है इट इज लाइंग विथ अलॉटमेंट, दैट इज फर्स्ट थिंग. इफ नथिंग इज गिवन इट लाइज विथ अलॉटमेंट. एंड कौन से एंट्री में एडजस्ट करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. विल यू एडजस्ट प्रीमियम इन योर बैंक वाला एंट्री या ड्यू अमाउंट का एंट्री? कौन से एंट्री में इस प्रीमियम को एडजस्ट करना है? तो ये प्रीमियम ड्यू वाले एंट्री में एडजस्ट होता है हमेशा, ठीक है? रिसीव्ड एंट्री में नहीं, ड्यू एंट्री में. ड्यू एंट्री में मतलब पहले ही कंपनी को सब पे भरोसा है, जैसे उसने कैपिटल क्रेडिट किया वैसे ही प्रीमियम क्रेडिट करेगी. ओके, प्रीमियम इज अ कजिन ब्रदर ऑफ कैपिटल. जिधर कैपिटल क्रेडिट होएगा उधर प्रीमियम क्रेडिट होएगा, ये याद रखने का. प्रीमियम इज अ कजिन ब्रदर ऑफ कैपिटल. कैपिटल के साथ चिपक के रहेगा. तो बैंक टू अलॉटमेंट के एंट्री में नहीं दिखने वाला है. That will be always a part on due entry. ड्यू एंट्री के टाइम पे वो प्रीमियम क्रेडिट करना है. अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट का ड्यू, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री, सेकंड कॉल में है प्रीमियम तो सेकंड कॉल के ड्यू एंट्री में, और अगर एप्लीकेशन में तो एप्लीकेशन के ट्रांसफर एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट होता है. ओके, ना कि रिसीव्ड एंट्री में. हमेशा याद रखना ड्यू ट्रांसफर एंट्री. ओके ओके, कैन यू टेल मी द अमाउंट सुहानी? 5,40,000, 2,70,000, 2,70,000. Perfect. 9,000 into 60, that is 5,40,000 rupees under allotment. Capital will be 9,000 into 30. That's towards capital, and obviously your premium is 30 rupees. So 2,70,000 rupees is premium. Okay. This is allotment due and premium adjusted. Allotment due and premium adjusted. Hope it's clear till this point. All of you got it? Krisha, Bhavik, Mrinmay. Now, fourth entry. Shikha, what will be your fourth entry? Yes, sir. Bank colon arrears to equity share allotment. Very good. देखो ऐसे नजर चलनी चाहिए, सब पे शार्प होना चाहिए. ओके, रीडिंग आपका पढ़ो आगे क्या दिया हुआ है. There was Mr. P who was having 100 shares who did not pay the allotment money. So call in arrear हो गया ना. So bank call in arrear account debit to equity share allotment account. Bank call in arrear to equity share allotment account. Can you tell me the amount, Shikha? How much first you will write in allotment वो बताओ. Allotment में 5 lakh. नहीं. 5 lakh. हाँ 5 lakh. 5 lakh. 5 lakh 40 मतलब. हाँ 5 lakh 40. हाँ हाँ. 5 lakh 40,000 चाहिए था आपको. कुछ एक्सेस था अलॉटमेंट में? कुछ नहीं था. नहीं नहीं. पूरा का पूरा 5 lakh 40 चाहिए सबको. ओके, अभी 5 lakh 40 में से कॉल इन अरियर कितना हो गया?
100 shares पे into what? 3000 100 into into 30. 30 सबको 30 भरना है कि 60 भरना है? 60 sorry बोलो तो क्या आएगा कॉल इन एरिया? 100 into 30 या 100 into 60? 100 into 60 100 into 60, that makes it 6,000 rupees. And बैंक में जाएगा 5,34,000. Is that clear? So यहाँ पे आएगा तुम्हारा 5,34,000 in bank, call in arrear will be 6 and equity share allotment will be 5,40,000. Okay, got it? All of you? Then this is nothing but allotment received and CIA adjusted. Allotment received and CIA adjusted. ठीक है? All of you got? अच्छा यहाँ पे मैंने नोट क्यों नहीं बनाया उसके कॉल इन अरियर का? आपको समझ में आ रहा है? एक दो सब में हमने नोट बनाया था, याद है वो एक्सेस अपना सॉरी कॉल इन अरियर कैलकुलेट करने के लिए अलॉटमेंट के वक्त वर्किंग नोट बनाया था. यहाँ पे क्यों कोई नोट वोट नहीं बनाया? क्योंकि उसका पैसा नहीं है अलॉटमेंट में. एग्जैक्टली कुछ एक्सेस पैसा है ही नहीं. ओके, वो कॉल इन अरियर का वर्किंग नोट तभी बनेगा व्हेन देयर इज एक्सेस मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट. तभी हम लोग करते थे ना कंपेयर, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, फिर एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, फिर अलॉटमेंट में कितना भरना है. ओके, वो सब हम लोग चेक करते हैं. तो यहाँ पर तो वो झंझट नहीं है, कुछ एक्सेस नहीं है, डायरेक्टली आप CIA कैलकुलेट कर सकते हो. तो बैंक CIA टू अलॉटमेंट. गॉट इट? Next entry. Dev, can you tell me the next one? After allotment, what will be your next step? Dev Gandhi? Yes, sir. Yep. What you will do after allotment? So first call. Yeah. So what is the entry? Bank call in arrear to first call. तो उससे पहले ड्यू करना पड़ेगा ना, फिर रिसीव करोगे. Hmm. Equity share first call account Preference debit. to equity share capital. हाँ, ये एंट्री खा मत जाना. So पहले ड्यू फिर रिसीव. ओके, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. व्हाट विल बी द अमाउंट ओवर हियर? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट क्या आएगा आपका? It will be 9,000 shares पे 20 rupees, I think. Got it? 1,80,000 rupees. This is equity share first call due. Equity share first call due. Okay, first call पे 9 into 2 1,80,000 चाहिए, तो हमने ट्रांसफर करके रख दिया. रिया, can you tell me the next entry after this? bank call in arrears to equity share first call account Very good. Bank call in arrear account debit to equity share first call account. How much will be in first call? First call में कितना लिखना है रिया? 1,80,000 और call in arrear में कितना आएगा? Who are not paying the first call now? Read. P and Q both. Very good. So how many shares in all? 300 300 multiplied by what? How much are we expecting on first call check? 20 rupees. So absolutely correct. It is 300 into 20. That comes to 6,000. And obviously your bank will have 1,74,000. Okay. This is your first call received and CIA adjusted. बाकी पूरा सम सेम हो रहा है, खाली वो प्रीमियम ऊपर बैठ गया है अलॉटमेंट के साथ. बाकी सब सेम कर रहे हैं हम लोग. बात समझ आ रही है? मिलोनी, can you tell me the next entry? Equity share second and final call to equity share capital. Very good. Equity share second and final call account debit
to equity share capital. What will be the amount over here? 1,80,000. Very good. That will be 9,000 into 20. That will be 1,80,000. 1,80,000 क्योंकि फाइनल कॉल पे भी अपने को 20 रुपीज चाहिए. Second and final call due. Last 8th entry, Krish Doshi, can you tell me the last entry? What will be second call ka? Bank account calls in arrears account to equity share final call account. Very good. Bank calls in arrears account debit to equity share second and final call. How much will write in second and final call, Krish? 1,80,000. 1,80,000. And how much in call in arrears? Now check. 1,000. Okay, who is defaulter over here? I think Mr. P and Mr. Q, right? Mr. P and Mr. Q, वही दो डिफॉल्टर है, कोई नया डिफॉल्टर नहीं है, वही कंटिन्यू होगा. तो कितना आएगा? सेम आएगा. आई थिंक 300 शेयर्स पे 20 रुपीज. दैट कम्स टू 6,000 रुपीज. ये नहीं मिला, ये मिलना बाकी है, तो उसको कॉल इन अरियर बोलेंगे और बैंक में 174. दिस इज सेकंड कॉल रिसीव्ड एंड CIA एडजस्टेड. Okay, second call received and CIA adjusted. यहां तक तो पूरा नॉर्मल सम कर लिया हमने, सब 9,000 शेयर्स का एंट्री कर लिया. सेकंड कॉल भी मांग लिया, उसमें से डिफॉल्टर थे उसको कॉल्स इन अरियर्स बता दिया. उसके बाद व्हाट इज द कंपनी डूइंग? वृष्टि, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द कंपनी? Forfeiture of shares. Yes, they are doing forfeiture. How many shares will you forfeit? How many shares you will forfeit? All the shares. All as in number? 100. Huh? Sorry, 130. Huh? Number of shares. Total number of shares. Cancel कितने करने? Defaulter 9,000. Sorry, 9,000. अरे mad or what? 9,000. जो लोग ने भरा है उनका क्यों cancel कर रहे हो? How many shares do you cancel? जो डिफॉल्टर है उनका शेयर्स कैंसिल करोगे ना, जो भरा है बेचारा उसको क्यों कैंसिल कर रहे हो? हाँ, 300 shares of P and Q. 300 shares we will forfeit. Okay, we will forfeit only 300 shares of P and Q. P and Q का 300 shares ही कैंसिल करना है. Can you tell me the journal entry for this, Rushti? Equity share capital to calls in arrears to share forfeiture. Okay, equity share capital account debit. Okay, to call in arrear. ध्यान से देखना, लिखना मत ये. Just look at it carefully. To call in arrear to share forfeiture. Normally ये एंट्री होता है अपना, बराबर है. अभी इसमें कैच है, इसमें एक और चीज हम लोग डेबिट कर सकते हैं. ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इफ यू रिमेम्बर. Premium. What is the logic of that premium? एक शॉर्टकट रूल भी दिया था, if you remember about premium. The rule If for Premium Pay once not received to- should not be debited and if Debited. not received should be debited. premium once received should not be debited, and premium not received should be debited. Once again, premium once received, bolo, should not be debited. Premium not received should be debited. Once again, all of you, premium once received should not be debited, but premium not received should be debited. बराबर है? All of you are getting that? अभी यहां पर ये तो रूल है, इसका लॉजिक मैं बताता हूं आपको क्या सीन है. अभी पहले ये देख लेते हैं, दोनों में से प्रीमियम किसने भरा है और किसने नहीं भरा है? बताओ मुझे. किसने नहीं भरा, क्यों नहीं भरा है? दोनों ने भरा है. सर, P ने नहीं भरा. तो दोनों ने भरा. P ने नहीं भरा. देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. डिफॉल्ट किसने किसने किया है पढ़ो वहां पे. P और Q दो डिफॉल्टर्स है. ध्यान से सुनना मेरा बात. ओके, all video should be on. Last warning will be out now. P और Q
दोनों ने डिफॉल्ट किया हुआ है पैसों पर, ठीक है। फर्स्ट कैच पी, टेल मी व्हाट डिड पी नॉट पे, पी ने क्या नहीं भरा? First call. पी डिड नॉट पे Allotment. allotment and first call and second call. P did not pay allotment and first call and second call, right? और अपना प्रीमियम कहां पड़ा था? अलॉटमेंट के साथ। Allotment. तो अगर P ने अलॉटमेंट नहीं भरा तो क्या उसने प्रीमियम का पैसा दिया है क्या कंपनी को? नहीं दिया है यार। तो P ने प्रीमियम नहीं भरा, ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, वो चेक करो क्या भर रहा है। P ने क्या भरा? एप्लीकेशन भरा, भाग गया। अलॉटमेंट नहीं भरा तो प्रीमियम वाज लाइंग विद अलॉटमेंट, तो अगर अलॉटमेंट नहीं भरा तो प्रीमियम भी नहीं भरा होगा। ये बात समझ आई? तो P ने प्रीमियम नहीं भरा है, P ने प्रीमियम नहीं भरा है, ठीक है। देन Q, व्हाट डिड Q नॉट पे, Q ने क्या पे नहीं किया? First call. First call and second call. Did he pay the allotment? Yes. Yes. Vanshi ji, did he pay the allotment? Q ने allotment पे किया? नहीं। पढ़ो, ध्यान नहीं है, बैंड बजेगा, ऐसा ही सम आएगा एग्जाम में। Q ने allotment पे किया कि नहीं, बताओ? Yeah. Q has paid the allotment. So if Q has paid the allotment, has he paid the premium? Yes. He has paid the premium. बोलो, यहां पे किसी को कंफ्यूजन? अब भी क्लियर कर लो, आगे बैंड बजेगा नहीं। किसने प्रीमियम भरा है, किसने नहीं भरा है, ये समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल है। The guy who has not paid allotment, he has not paid premium because premium का amount allotment के साथ था, और guy who has paid allotment has paid premium. Simple. यहां तक क्लियर हो गया? अभी देखो अपना प्रीमियम का रूल क्या है forfeiture के वक्त? प्रीमियम once received should not be debited, but premium not received should be debited. तो प्रीमियम once received should not be debited, not received should be debited, not received should be debited. तो किसने प्रीमियम नहीं भरा? P. तो किसका प्रीमियम शुड आई डेबिट? P. P का। P का प्रीमियम मुझे डेबिट करना पड़ेगा यहां पर। कहां पर? इन माय फोर फीचर एंट्री। तो इन माय फोर फीचर एंट्री आई विल डेबिट शेयर कैपिटल एज वेल एज आई विल डेबिट प्रीमियम, दोनों को डेबिट दूंगा मैं। ऐसा क्यों? कोई इसका रीजन बता सकता है? मैंने लास्ट लेक्चर समझाया था, इफ यू रिमेंबर। ये ऐसा क्यों करते हैं? नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड, वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, ऐसा क्यों? बोलो, डज एनीवन रिमेंबर दिस? वी डिस्कस्ड इट इन द लास्ट लेक्चर। फेक प्रीमियम नहीं दिखा सकते। फेक प्रीमियम नहीं दिखा सकते, देखो फेक प्रीमियम नहीं दिखा सकते। कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट ध्वनि? मतलब प्रीमियम क्रेडिट तो क्या, पर पैसा आया ही नहीं। प्रीमियम क्रेडिट कहां पे किया है? पर ऊपर किया हुआ है। यहां पर देखो प्रीमियम क्रेडिटेड ऑलरेडी 2,70,000 से, दिख रहा है? ये प्रीमियम हमने पूरा का पूरा 9,000 शेयर का क्रेडिट दे दिया है। मतलब हम तो ऐसे सोच रहे थे सब भरेंगे, 9 का क्रेडिट में पड़ा हुआ है, बट इसमें से ये पपलू निकल आया P, इसने नहीं भरा। तो ये जो 9,000 शेयर है इसमें P का भी 100 शेयर पड़ा हुआ है, हमने पहले ही क्रेडिट करके दिखा दिया, लेकिन P ने पैसा भरा ही नहीं। तो रिजर्व है, आपके लायबिलिटी में रिजर्व है तो बैलेंस शीट एसेट में रोकड़ा होना जरूरी है। एनी लायबिलिटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ करस्पॉन्डिंग एसेट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो प्रीमियम का जो रिजर्व है ना, उसके सामने एसेट में रोकड़ा होना जरूरी है। समझ में आ रही है?
कंपनी ने प्रीमियम तो क्रेडिट कर लिया, रिजर्व तो क्रेडिट कर लिया, पैसा आया नहीं, तो क्या वो रियल प्रॉफिट है कि फेक प्रॉफिट है? बोलो, वो जो 100 शेयर्स का पी का प्रीमियम है वो रियल है कि फेक है? फेक। फेक है, फेक प्रॉफिट दिख रहा है, रॉन्ग प्रॉफिट दिख रहा है, तो वी नीड टू नलिफाई, कैंसिल करो उसको। इज दिस क्लियर? दैट्स व्हाई वी आर डेबिटिंग। अच्छा, क्यू का क्यों डेबिट नहीं कर रहे? व्हाई आर वी नॉट डेबिटिंग क्यूज प्रीमियम? बिकॉज उसका प्रीमियम क्रेडिट हुआ और सामने पैसा भी आ गया, रिजर्व भी है और कैश भी है, तो लफड़ा ही नहीं है आपको। बात समझ आ रही? रिजर्व के सामने क्यू ने प्रीमियम कर दिया है, भर दिया है ना, कैश आ चुका है, सो इट्स नॉट अ फेक प्रॉफिट, इट्स रियल प्रॉफिट। सो नो नीड टू कैंसिल दैट प्रीमियम। हड़प लो, मजा करो, पार्टी करो कंपनी वालों। समझ में आई बात? इज दिस क्लियर? So in short, what is the rule for premium at the time of forfeiture? Once again, what is the rule of premium at the time of forfeiture? बताओ मेरे को, all of you. Unmute and tell the rule for premium at the time of forfeiture. What is the rule for premium at the time of forfeiture? Once received should not be debited, and Not received should be debited. should be debited. Jainam Shah, are you listening? इधर उधर Yes, मुंडी sir. घुमा रहे हो, पेपर में बैंड बजेगी। सर समझ रहा है। Received should not be debited and not received should be debited. ठीक है, ये सीनियर केजी जैसा राइमिंग दिमाग में फिट कर लो। प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड। प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड। इज दिस क्लियर? सर मतलब ये तभी होता है ना जब भी शेयर फॉर फ्यूचर और प्रीमियम। हाँ, फोर फीचर एंट्री पे ही भाई, ये फोर फीचर एंट्री पे ही होता है। मतलब प्रीमियम रहेगा तभी ना। ऑब्वियसली यार, प्रीमियम नहीं रहेगा तो प्रीमियम का बात ही किधर है। शाबाश, प्रीमियम है और फोर फीचर का एंट्री करना है तभी ये रूल फॉलो करना, वरना रूल याद रहेगा, कहाँ अप्लाई करना है वही भूल जाओगे। फोर फीचर एंट्री में अप्लाई करना है, फोर फीचर एंट्री में। ओके, प्रीमियम वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड, फोर फीचर एंट्री। अब बताओ मुझे, कैपिटल में क्या अमाउंट लिखोगे आदित्य शाह? How much you will debit your capital by? 300 shares we are cancelling. Simple, come on. 300 into 300 into what? Come on. 12. अरे कैसा 12? क्या बोल रहे हो? कौन सा सम? नियति गाला, can you tell me the amount? 300 into what? Capital. नियति 300 into 30. रॉन्ग यार, कैपिटल चालू है, कैपिटल ऊपर, कैपिटल को डेबिट करने का बात चालू। यश देसाई, कैन यू टेल मी कितने से डेबिट होगा कैपिटल? 130. रॉन्ग, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। 100 रुपीज। 3 लाख आएगा। 300 into 100 3 लाख आएगा। सब पागल हो गए आज क्लास। 300 into 100 3 लाख होता है। सर 30,000। गुड मैथ्स। 300 into 100, okay, face value. Capital will be always debited by face value. इतना सारा सम हो गया है। So many times you have done forfeiture entry. Capital हमेशा face value, called up value. जितने से क्रेडिट किया है कैपिटल उतने से ही डेबिट करना है। ओके, कोई बोल रहा है 12, कोई बोलता है 120, कोई बोलता है कुछ भलता ही अमाउंट। ओके, बैंड बजेगा, यही टाइप का सम आने वाला है, बी अलर्ट। और या तो दे विल आस्क यू ओनली फोर फीचर रीइश्यू एंड ट्रांसफर एंट्री। वंस अगेन, कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय व्हाट? द कॉल्ड अप अमाउंट। अभी तक कॉल्ड अप मतलब कितना मंगवाया है कंपनी ने। अभी तक सबसे 100 रुपया मांगा है, कैपिटल की तरफ 100 मांगा है, ऊपर का 30 प्रीमियम का है। ठीक है, तो कैपिटल की तरफ द कंपनी हैज आस्क्ड फॉर 100 रुपीज,
still debited also by 100 rupees. Keep that in mind. Okay. So 300 into 100, 30,000. Premium, साक्षी, चलो बताओ प्रीमियम में कितना आएगा और किसका शेयर्स में प्रीमियम लिखोगे तो? सर पी में लिखेंगे. हाँ, पी का ही शेयर्स का प्रीमियम आएगा तो अमाउंट क्या आएगा प्रीमियम कितने से डेबिट करना? सर 300 into 20. Wrong. Can anyone tell me about this? 100 into 30. 100 into 30. खाली पी का शेयर का 30 रुपीज. 100 into 30, 3000. पी के कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे. ओके, 100 शेयर्स पे प्रीमियम कितना है? 30 रुपीज. तो 100 into 30, 3000. सिंपल एज दैट. प्रीमियम का रूल क्या है? वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड. तो पी का प्रीमियम है, नॉट रिसीव्ड है तो डेबिट करना पड़ेगा अपने को. ओके, तो 100 शेयर्स थे पी के इंटू 30. व्हाट इफ पी एंड क्यू दोनों ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया होता? पी और क्यू दोनों ने अगर अलॉटमेंट नहीं भरा होता तो कितने शेयर्स पे लेते हम लोग प्रीमियम? 300 into 30, 9000 होता. समझ में आ रही है बात? क्या होता अगर खाली क्यू ने अलॉटमेंट नहीं भरा होता? अगर खाली क्यू ने अलॉटमेंट नहीं भरा होता तो कितना आता प्रीमियम यहाँ पे? 200 into 36,000. 200 into 36. व्हाट इफ दोनों ने अलॉटमेंट भरा होता? पी और क्यू दोनों ने अलॉटमेंट भरा होता तो फिर प्रीमियम को डेबिट करना ही नहीं है इन दैट सिचुएशन. गॉट इट? प्रीमियम का थंब रूल बड़ा ही सिंपल है. व्हाट इज द थंब रूल फॉर प्रीमियम? वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड. इज दैट क्लियर? तो जिसने नहीं भरा उसी के शेयर को पकड़ो और प्रीमियम मल्टीप्लाई करना. सबको मत उठा देना सार्वजनिक तौर पे. टू कॉल इन अरियर, चलो कॉल इन अरियर का टोटल करो सब लोग. कितना आ रहा है कॉल इन अरियर का टोटल? दिस इज 6000, दिस इज 6000, दिस इज आल्सो 6000. 6 + 6 + 6 18,000 आ रहा है मेरे को. तो कॉल इन अरियर मिला आपको. 18,000 इज कॉल इन अरियर टोटल. तो बाकी का बचा किधर जाएगा? हड़पा हुआ पैसा. वेयर यू विल पुट दैट हड़पा हुआ पैसा? फोरफीचर. व्हाट इज योर फोरफीचर अमाउंट? 15,000 आ रहा है. आर यू ऑल गेटिंग दैट? 15,000. बोलो. ये जर्नल एंट्री में किसी को डाउट? सर 15,000 कैसे आएगा? 33 minus 18. तो सर वो 3,000 तो मिला ही नहीं ना. 33 minus 18 कितना होता है? 15 होता है ना. पर सर हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर में वो करते हैं ना जो हम लोग का पैसा मिला होता है. टुवर्ड्स कैपिटल. शेयर फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट होता है दैट इज रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल. ओके, विल वेरीफाई करवा रहा हूं मैं. वेरीफाई, डोंट वरी. पी और क्यू दोनों को वेरीफाई करते हैं. अभी ये 15,000 का ब्रेकअप देखो यहाँ पे. इसमें पी का कितना हड़पा हुआ है और क्यू का कितना हड़पा हुआ है? ओके, ये 15,000 जो मिला अपने को ये हड़पा हुआ पैसा है. इसमें पी का भी पड़ा हुआ है और क्यू का भी पड़ा हुआ है. टेल मी व्हाट डिड पी पे? एप्लीकेशन. ओनली एप्लीकेशन और भाग गया. कितने शेयर्स थे पी के? कितने शेयर्स थे? 100. आई शुड टेक अप्लाइड शेयर्स क्योंकि मैंने बताया था ना खाली एप्लीकेशन भरा है तो टेक अप्लाइड शेयर्स. यहाँ पर तो अप्लाइड अलॉटेड सेम है. तो 100 शेयर्स इनटू व्हाट? कितना पैसा भरा है उसने? 30 रुपीज. और कुछ भरा है उसने? भाग गया. तो 100 into 30, 3,000. ये एप्लीकेशन का पैसा उसने भरा और भाग गया. कैपिटल की तरफ इतना ही भरा था. अभी क्यू ने क्या भरा है? पढ़ो. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट. हाँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. मतलब उसने 30 और 60 90 रुपया भरा है. ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 200. तो देखो 200 into 90 कितना होता है? 18,000. और 18 + 3 is 15,000. करेक्ट? 21,000. सर 18 + 3 is 21. हाँ, ये क्यों गणित नहीं बैठ रहा है यहाँ पे? हम लोग तो ऐसे ही करते थे अब तक. प्रीमियम. सर प्रीमियम नहीं भरा है. प्रीमियम
क्यों ने भरा? क्यों ने तो भरा है यार, क्यों ने तो अलॉटमेंट भरा है, 60 रुपया पूरा भरा है, प्रीमियम भी भरा ना। अब पी का मैंने प्रीमियम लिया है किधर है? पी ने तो 30 भरा है अलॉट एप्लीकेशन का, तो ये क्यों बैठ नहीं रहा है यहाँ पे टोटल? क्यों का निकालना पड़ेगा इसमें से। क्यों 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 निकालना है? वाई आर वी सपोज्ड टू कर दिया हम It लोग should ने। not be debited. नहीं नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। तो प्रीमियम का पैसा किधर गया? शेयर प्रीमियम में डाला। हाँ, शेयर प्रीमियम में ऊपर ऑलरेडी क्रेडिट में है और उसका पैसा भी पड़ा हुआ है। ओके, ये पैसा खाली फोर फीचर में कौन सा है? टुवर्ड्स योर कैपिटल। दिस मनी विच यू आर कैलकुलेटिंग ओवर हियर इज द प्रॉफिट टुवर्ड्स कैपिटल। कैपिटल की तरफ जो पैसा नहीं भरा है, सॉरी जो भरा है, दैट मनी यू विल राइट अंडर फोर फीचर। ओके, तो कैपिटल, शेयर कैपिटल की तरफ जो पैसा भरा है ना, दैट विल बी ट्रांसफर टू फोर फीचर। तो व्हाट अबाउट प्रीमियम? प्रीमियम की तरफ जो पैसा भरा है वो प्रीमियम अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो भी हड़प लिया है कंपनी ने इससे 200 इंटू 90 पूरा हड़पा है, लेकिन फोर फीचर में खाली 200 इंटू 60 दिखेगा, 12,000। कैसा 200 इंटू 60? ये रहा 30 ऑन एप्लीकेशन एंड 30 ऑन अलॉटमेंट टुवर्ड्स कैपिटल। जो 60 रुपया उसने कैपिटल का भरा है ना, वो हम लोग फोर फीचर में ट्रांसफर करते हैं, और जो 30 रुपीज प्रीमियम का, वो ऑलरेडी प्रीमियम क्रेडिट पड़ा हुआ है, वो पैसा भी हड़पा है लेकिन सेपरेट रिजर्व में पड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो क्यू का केस में ऐसे मत सोचना कि यू आर हड़पोइंग ओनली 60 रुपीज, यू हैव हड़पोफाइड फुल 90 रुपीज फ्रॉम। जो 90 उसने भरा था तुमने जेब में डाला हुआ है, 60 रुपीज फोर फीचर में, 30 रुपीज प्रीमियम में पड़ा हुआ है, खाली दो सेपरेट अकाउंट्स में। तो इसीलिए यहां पर जब आप फोर फीचर अमाउंट कैलकुलेट करते हो तो मुझे बताओ, फोर फीचर में प्रीमियम आएगा कि नहीं? नहीं, फोर फीचर अमाउंट में प्रीमियम नहीं लेने का। इन शॉर्ट, जब आप फोर फीचर कैलकुलेट करते हो, फोर फीचर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, शेयर फोर फीचर कैलकुलेट करते हो, तो उसमें प्रीमियम नहीं लेने का, खाली अमाउंट पेड टुवर्ड्स कैपिटल ही लेने का। समझ आ गई बात? देखो मैं आपको बैलेंस शीट फॉर्म में भी बता देता हूं, देख लो अच्छे से। पी का सिचुएशन क्या है देखो, पी का था 200 शेयर्स, ठीक है? तो कंपनी के 9,000 शेयर्स में पी का सिचुएशन कुछ ऐसा दिख रहा होगा। कैपिटल में दिख रहा होगा 200 इंटू 100, 20,000। फिर होगा उसका बैंक में आया होगा, उसने 200 इंटू 90 भरा है, 18,000। ओके, कॉल इन अरियर है उसका 200 इंटू 40, दो कॉल का 8,000। और इधर प्रीमियम भी कंपनी ने क्रेडिट करके दिखाया है रिजर्व में, 200 इंटू 30, दैट इज 6,000। ये 26,000 की बैलेंस शीट है। खाली क्यू, मतलब क्यू का सिचुएशन ऐसा है, कंपनी में क्यू का पोजीशन ऐसा दिख रहा है। इन द बुक्स ऑफ कंपनी दिस इज क्यू का सिचुएशन। ये समझ में आ रहा है आपको? क्यू का कैपिटल 20,000 से क्रेडिट हो चुका है, प्रीमियम भी एडवांस में कंपनी ने क्रेडिट करके दिखा दिया है थर्ड एंट्री में, बैंक में आया हुआ है 18,000 उससे, क्योंकि येस पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड कॉल इन अरियर है उसका 8,000। इतना पैसा नहीं भरा है, ठीक है? अभी हम लोग इसका शेयर कैंसिल करते हैं, अभी फोरफीट करना है। अभी ध्यान से देखना क्या करेगी कंपनी। ये 18,000 और 8,000, 26,000 की बैलेंस शीट है, क्यू का पोजीशन है। अभी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करते वक्त व्हाट विल द कंपनी डू? पूरा का पूरा कैपिटल कैंसिल, ये 20,000 गुल हो जाएगा, ठीक है? 20,000 से कैपिटल गुल हो जाएगा, सामने कॉल इन अरियर ये गुल हो जाएगा 8,000 से, और जो हड़पा हुआ पैसा है ना 18,000, उसमें से 6,000 प्रीमियम का वैसे ही रखेगा, इधर एक और रिजर्व लाएगा, शेयर फोर फीचर ऑफ 12,000। वन मोर रिजर्व विल कम, शेयर फोर फीचर ऑफ 12,000। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब समझ आ रहा है कुछ? हड़पा तो पूरा 18,000 ही है कंपनी ने, खाली अलग अलग रिजर्व में पड़ा हुआ है।
प्रीमियम का 6000, देखो रूल याद है प्रीमियम का, वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड। तो क्यू का प्रीमियम रिसीव हुआ था ना, तो हमने डेबिट नहीं किया, हमने प्रीमियम वैसे ही रखा, और ऊपर का जो 12000 कैपिटल का उसको अलग रिजर्व में डाल दिया फोर फीचर। दैट इज द सर आपने उसमें सीआई में 8000 क्यों लिखा जाता है? 8000 मतलब जो नहीं भरा, उसने क्या नहीं भरा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो 40 रुपया ऑन 200 शेयर्स हुआ ना 8000। 40 rupees on 200 shares, that is 8000 rupees, that is call in arrear। कॉल इन अरियर में कंफ्यूज मत होना, कॉल इन अरियर में प्रीमियम आ जाएगा, जो पैसा नहीं भरा वो सब। कॉल इन अरियर में जो पैसा नहीं भरा, कैपिटल का नहीं भरा वो भी कॉल इन अरियर है, प्रीमियम का नहीं भरा वो भी कॉल इन अरियर है। कैपिटल की तरफ नहीं भरा उसको भी कॉल इन अरियर बोलते हैं, प्रीमियम की तरफ नहीं भरा उसको भी कॉल इन अरियर बोलते हैं। कॉल इन अरियर कोई भेदभाव नहीं करता, कॉल इन अरियर मतलब जो पैसा आपने रिसीव नहीं किया वो कॉल इन अरियर, ठीक है। बट शेयर फोर फीचर का प्रॉफिट ढूंढते वक्त याद रखना, विल यू टेक प्रीमियम व्हाइल कैलकुलेटिंग शेयर फोर फीचर का प्रॉफिट? बोलो, शेयर फोर फीचर के प्रॉफिट के अंदर प्रीमियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। शेयर फोर फीचर में कौन सा पैसा पड़ा हुआ है? द मनी रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल, द मनी रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल, शेयर कैपिटल की तरफ जो पैसा हड़पा है वो ही फोर फीचर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रीमियम का हड़पा हुआ पैसा सेपरेट रिजर्व में पड़ा हुआ है प्रीमियम। चलो वैसे ही पी का पोजीशन भी देख लो बैलेंस शीट में, पी का पोजीशन, पी का 100 शेयर्स था, पी का सिचुएशन क्या था, उसका शेयर कैपिटल था 100 into 100 दैट इज 10,000, उसका शेयर प्रीमियम था 100 into 30 दैट वाज 3000। पी ने खाली एप्लीकेशन भरा था तो भाई ने 100 शेयर्स पे खाली 30 रुपया भरा था 3000, और कॉल इन अरियर होगा उसका 10,000। ये पी की बैलेंस शीट थी। अभी पी के भी शेयर्स हमने कैंसिल किए हैं, तो पी के शेयर का ये फोर फीचर एंट्री में क्या करेंगे हम लोग, देखना है ध्यान से। अभी यहाँ पे पी का फोर फीचर एंट्री वी आर डूइंग, ध्यान से देखो ध्रुव पासवर्ड। शेयर कैपिटल कैंसिल किया पहले हमने 10,000 से, कॉल इन अरियर कैंसिल किया 10,000 से, डेबिट दिया। अभी जो पैसा भरा था ये बैंक, ये प्रीमियम के तरफ नहीं भरा था उसने, एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम नहीं था, एप्लीकेशन मनी में कैपिटल की तरफ भरा था, तो ये प्रीमियम भी कैंसिल किया हमने। याद है वो रूल, प्रीमियम वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड। तो यहाँ पे उसका प्रीमियम डेबिट किया है हमने, डेबिट किया मतलब कम कर दिया है प्रीमियम, तो ये पैसा किधर पड़ा हुआ है, शेयर फोर फीचर। पी का जो प्रॉफिट है वो चला गया शेयर फोर फीचर, समझा कि नहीं? सो दिस इज द सिचुएशन, ओके। वंस रिसीव्ड प्रीमियम है तो उसको टच मत करो, नॉट रिसीव्ड है तो उसको डेबिट करो, और आया हुआ पैसा जो कैपिटल का उसको फोर फीचर अकाउंट में डाल दो। दोनों प्रॉफिट ही है कंपनी के, दोनों अपने पास ही पड़े हुए हैं, याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपली आ जाएगा, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। बोलो, एनी डाउट एनीवन इन दिस पॉइंट? फोर फीचर एंट्री का कंसेप्ट बैठ रहा है अभी। प्रीमियम, ओके, वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड, वो याद रखना। बाकी कॉल इन अरियर जो नहीं भरा और शेयर फोर फीचर जो भरा है टुवर्ड्स कैपिटल, शेयर फोर फीचर में वो अमाउंट जो भरा है टुवर्ड्स कैपिटल, नॉट टुवर्ड्स प्रीमियम। 10th entry, what is the company doing? It is reissuing the shares. Now if you check properly, what is the reissue price? Is the reissue price 100 or 110? 110. तो यहाँ पर reissue के वक्त क्या हो रहा है? Is the reissue Including premium. par or premium? Premium. प्रीमियम। यहाँ पे reissue भी प्रीमियम पे हो रहा है, मतलब कंपनी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतना नाम है उसका मार्केट में, ये साली एक बार डिफॉल्ट भी हो गया फिर भी प्रीमियम पे इश्यू कर रही है शेयर्स। आर यू गेटिंग दैट? सो इट डिपेंड्स ऑन द गुडविल ऑफ द कंपनी। इफ इट्स अ गुड कंपनी तो डिफॉल्टेड शेयर्स भी वो प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रीमियम पे करना है ना इश्यू, एंट्री क्या होगा ध्यान से देखना। यहाँ पर
बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं। चलो आप ही बताओ मुझे, अगर ये प्रीमियम पे हम लोग इश्यू करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, सोच के बताओ। सर बैंक कॉलन अरियर टू कैपिटल टू प्रीमियम। बैंक to Clear का equity answer share होगा capital premium। to share premium. शेयर फोर फीचर। कुछ भी बोल रहे हैं वो, शिट भी आज भांग पी के बैठे। एक एंट्री बोलो मेरे को आज, क्या होना चाहिए? Equity share capital to share premium. premium. बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। व्हाई नॉट फोर फीचर? डेबिट में तो फोर फीचर लिखते थे हम लोग अभी तक। लॉस हुआ तो लॉस हुआ ना तो फोर फीचर को डेबिट करो, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो फोर फीचर को क्रेडिट नहीं करना है। प्रॉफिट हुआ तो किसको क्रेडिट करने का? प्रीमियम को क्रेडिट करने का। क्यों ऐसा? क्योंकि फोर फीचर का लिमिट जो होता है ना, वो खाली कैपिटल की जितना ही होता है, कैपिटल के अंदर ही चलता है फोर फीचर। उसके ऊपर जो मलाई कमा रहे हो वो प्रीमियम में ही जाएगा, वो फोर फीचर में नहीं जाएगा। अगर फोर फीचर में डाला तो रॉन्ग है, कंपनीज एक्ट में ही रॉन्ग दिया है। क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि आप सोचो, कोई शेयर्स डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आपने उनको फोरफिट किया, अभी वही शेयर आपने प्रीमियम पे इश्यू किया और वो आपने फोर फीचर को क्रेडिट कर दिया, तो और वही शेयर को आप री इश्यू कर रहे हो, कोई दूसरे शेयर री इश्यू कर रहे हो, तो उस फोर फीचर को आप लॉस में एडजस्ट कर रहे हो। तो आप एक टोपी घुमाने का काम कर रहे हो। आप कोई शेयर प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, उधर भी फोर फीचर क्रेडिट कर रहे हो, कोई शेयर लॉस में इश्यू कर रहे हो, उधर फोर फीचर डेबिट कर रहे हो। तो ये चीज गलत है। आप एक शेयर होल्डर का गेन दूसरे शेयर होल्डर के लॉस में टोपी नहीं घुमा सकते। आप अगर री इश्यू कर रहे हो तो सभी शेयर या तो लॉस में इश्यू करो या सभी शेयर प्रॉफिट में इश्यू करो, प्रीमियम पे इश्यू करो। यहां पे अगर आप फोर फीचर में क्रेडिट कर दोगे ना तो कंपनी के पास चॉइस हो जाएगी, वो कोई शेयर को लॉस में इश्यू करेगा, री इश्यू करेगा, कोई शेयर को प्रॉफिट में री इश्यू करेगा, क्योंकि फोर फीचर तो पड़ा हुआ है उसके पास बहुत सारा। सर मतलब अभी इसमें 110 की जगह 90 पे इश्यू किया रहता तो हाँ, तो लॉस जो होता 10 रुपीज का, that would have been debited to share forfeiture account. Loss will always go to share forfeiture, but जो फेस वैल्यू के ऊपर कमा रहे हो वो प्रॉफिट, वो फोर फीचर में नहीं जाएगा, वो प्रीमियम में जाएगा। तो अगर वो भी आप फोर फीचर में करते हो तो कंपनी तो क्या फिर टोपी घुमाने का काम करेगा। कोई शेयर होल्डर को लॉस में री इश्यू करेगा, कोई शेयर होल्डर को प्रॉफिट में री इश्यू करेगा, क्योंकि उसको मालूम है वो लॉस एडजस्ट करने के लिए उसके पास फोर फीचर तो बहुत पड़ा हुआ है। कोई शेयर होल्डर को बुद्धू बना देगा, टोपी पहना लेगा ज्यादा चार्ज करके। सो दैट इज नॉट करेक्ट। तो इसीलिए ये बम्बू डाला हुआ है एक्ट में कि भैया आपका अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट फोर फीचर, बट अगर प्रॉफिट हो रहा है उसका मतलब समझा प्रॉफिट कैसे हो रहा है कंपनी का। यहाँ पे री इश्यू पे प्रॉफिट का मतलब प्रीमियम। अगर री इश्यू पे प्रीमियम है तो कौन से अकाउंट में जाएगा वो प्रीमियम? बोलो। शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम। यही शेयर्स अगर 100 रुपए के थे और 80 रुपीज में री इश्यू होते तो 20 रुपीज का लॉस कहां जाता? शेयर फोर फीचर। शेयर फोर फीचर। बट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कहां जाएगा? शेयर प्रीमियम। ओके, 100 रुपए के ऊपर है, 10 रुपए के ऊपर है तो सब कुछ शेयर प्रीमियम। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे अभी अमाउंट्स क्या होंगे आपके? यू आर रीइश्यूइंग ऑल 300 शेयर्स, तो 300 शेयर्स इनटू व्हाट? 110 रुपया ले रहे हो आप, तो 33,000। उसमें से कैपिटल में कितना जाएगा? तो 300 इंटू 100 दैट विल बी 30,000। और शेयर प्रीमियम में जाएगा 300 इंटू 10। री इश्यू का प्रीमियम है 10 रुपया। ओके, दिस इज बीइंग 300 शेयर्स reissued at the rate of 110. 300 shares reissued at the rate of 110. अभी वो एक टूथपेस्ट के साथ टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश मुफ्त वाला एंट्री। What is that last entry? You need to pass after reissue. What is that last entry? Share four feature to capital reserve. Share four feature, ये कोई बताने नहीं आएगा, आपको झक मार के करना है। जहां री इश्यू दिखा वहां पे ये चिपका देना है, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, हाउ मच यू विल राइट इन शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व?
हाउ मच यू विल राइट इन शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व? कितना ट्रांसफर करोगे? सिंपल सा कंसेप्ट है। 18,000 कितना? 18,000। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर फोर फीचर में से कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं। तो शेयर फोर फीचर को ही पकड़ो, शेयर फोर फीचर का क्रेडिट में कितना था? 15,000, 15 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे कुछ लॉस हुआ है रीइश्यू में शेयर फोर फीचर का? इज देयर एनी लॉस? नो लॉस। तो कितना पड़ा है? हाउ मच मनी इज लाइंग इनसाइड शेयर फोर फीचर? कैन यू टेल मी हाउ मच मनी? 15,000। सेम 15 यू ट्रांसफर। तो सर ये 3,000 का क्या? ये 3,000 प्रीमियम में पड़ा हुआ है। 3,000 प्रीमियम भी रिजर्व ही है ना तुम्हारा, वो अलग रिजर्व है, उसको ट्रांसफर नहीं करना है। शेयर प्रीमियम इज अ परमानेंट रिजर्व, डोंट टच दैट। यू आर जस्ट सपोज टू ट्रांसफर फ्रॉम टेम्पररी टू परमानेंट। तो खाली शेयर फोर फीचर को आपको ट्रांसफर करना है इनटू कैपिटल रिजर्व। इज दैट क्लियर? गॉट इट? प्रीमियम को टच करने की जरूरत कतई नहीं है, ठीक है? तो प्रीमियम अगर पार पे भी इश्यू होता है, यहाँ पे समझो 300 के शेयर जो भी री इश्यू कर रहे हो, 300 शेयर वो 100 रुपए में करते हैं आप, तो बैंक टू शेयर कैपिटल 30-30, फिर भी कोई लॉस नहीं है। यू वुड हैव ट्रांसफर्ड शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व फुल 15,000। ओके, प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रीमियम में पड़ा हुआ है, उसमें भी सेम ही अमाउंट ट्रांसफर करना है 15,000। जितना शेयर फोर फीचर का है वही ट्रांसफर करना है, प्रीमियम को टच नहीं करना है। प्रीमियम अलग प्रॉफिट है, शेयर फोर फीचर अलग प्रॉफिट है, डोंट मिक्स दोस। मुझे बताओ री इश्यू अगर 120 रुपए पे हुआ होता, री इश्यू अगर 120 रुपीज पे हुआ था, तो हाउ मच यू वुड हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व? 15,000। री इश्यू 150 रुपए पे हुआ होता तो भी कितना ट्रांसफर होता? 15,000। 15,000. री इश्यू 200 रुपए पे हुआ होता तो भी कितना ट्रांसफर होता? 15,000 ही ट्रांसफर करता। हाँ, लेकिन री इश्यू 90 रुपए पे हुआ होता और 3,000 का लॉस हुआ होता तो 12,000। 12,000 ट्रांसफर होता। वो लॉस शेयर फोर फीचर से लिया हुआ है, समझा? तो प्रॉफिट है, प्रीमियम है, वो अलग रिजर्व है, शेयर फोर फीचर अलग रिजर्व है। इस एंट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर सिंपली ट्रांसफरिंग शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोर फीचर पर ही फोकस करना, उसी का प्रॉफिट लॉस देखना, ठीक है? So that's your final entry, balance in share forfeiture transferred to capital reserve. Balance in share forfeiture transferred to capital reserve. देख लो बराबर से। Tell me if you have any doubts. चलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो सब लोग, टेक आउट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। Come to page number 5, 5 क्या, sorry, fifth sum, page 342. Page 342, sum number 5. Page 342, sum number 5. Page 342, sum number 5. देखना ध्यान से,
Fifth sum, page 342, standard textbook. Sucheta Company Limited. Sucheta Dalal. Was Sucheta Dalal, you know? Editor of TOI. Editor of TOI. Editor of TOI. He received Sorry? Padma Shri. Financial editor थी ना? Financial editor received Padma Shri. जिसने हर्षद मेहता की बजाई थी वो. हर्षद मेहता की बजाई थी, केतन पारेख की बजाई थी, तुम्हारा बैंकिंग फ्रॉड का IDBI स्कैम का बजाया था, फिर और भी है उसने कितना 4-5 स्कैम के पीछे ही पड़ी रही. And all scams were all by political influence. So, politically, all journalists are affiliated to politicians. Politicians को लगता है अपना जान बचाने का है तो जर्नलिस्ट को आगे करके स्कैम एक्सपोज करवाते. It's all working like that. Buffers also work that way. No scam happens unless and until there is a politician involved. कोई भी नेता के बगैर कोई स्कैम हो ही नहीं सकता. जब भी उनको नाम सेव करना होता है तो दे keep ahead all the other puppets and bring out the names in public. Sure. Let's begin with question number 5. Okay. Question number 5, page 342. Sucheta Company Limited issued 20 lakh rupees new capital divided into 100 rupees equity shares at a premium of 20 per share. अभी 20 lakh shares नहीं है, पागल मत हो जाना. 20 lakh rupees का capital है. तो 20 lakh rupees divided into shares of 100, it म्हणजे how many shares? 20,000 shares. हाँ, 20,000 shares आप issue कर दो, ठीक है? और वो shares जो है at a premium of 20 है. So it is 100 plus 20. What is your issue price, guys? What is your issue price? 120. 120 rupees. 120 rupees. Okay. Payable as 10 on application. पहले तो ये breakup ढूंढ लो आप. 10 on application है. 40 on allotment and 10 premium. 40 on allotment and 10 premium म्हणजे तुम्हारा 40 plus 10 है यहाँ पे. Allotment पे it is 40 plus 10, 40 on allotment and 10 premium, और आगे दिया है 50 on final call and 10 premium. 50 on final call and 10 premium. तो ये first and final call पे total कितना मंगवा रहे हो आप? 60 rupees. तो ये सब में मेन फर्क क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कुछ? प्रीमियम भी ब्रेक करके दिया है. हाँ, प्रीमियम ब्रेक करके दिया है. What was your total premium? 20 rupees. I told you premium can lie with any part. It can lie with application, allotment, first call, second call. It can lie in टुकड़ा form, any form. तो यहाँ पर टोटल करके देखो 10 और 50, 60 और 60, 120, 10, 50 और 60. That is the breakup. But वो जो प्रीमियम है 20 rupees, it is lying as 10 rupees with allotment and 10 rupees on first and final call. दिख रहा है आपको? प्रीमियम आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होके पड़ा हुआ है. समझ में आई बात? बढ़े आगे. सर हम लोग ऐसा अज्यूम क्यों कर रहे हैं, मतलब हम लोग ऐसा क्यों नहीं अज्यूम करते कि अलॉटमेंट में है पूरा? अरे क्वेश्चन पढ़ो, क्लियर कट दिया हुआ है. रीड द लाइन. क्या दिया हुआ है? हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, प्रीमियम कहां पे पड़ा है, तो क्या अज्यूम करते? तो इट इज लाइंग विथ व्हाट? अलॉटमेंट. ठीक है, अब पढ़ो आगे. अभी यहां से जो सम्स होंगे एग्जॉस्टिव होंगे, सब ज्ञान एक साथ दे देंगे. देखो पढ़ो क्या दिया हुआ. द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 शेयर्स. अभी आपने तो इश्यू किया था 20 और ओवर सब्सक्राइब हो गया, 26 का एप्लीकेशन आ गया. अभी ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास क्या चॉइस होता है, याद है आपको? देयर आर टू चॉइसेस विद द कंपनी, refund and pro rata. हाँ, रिफंड या प्रो रेटा. तो क्वेश्चन पढ़ो वहां पे क्या दिया हुआ. द एप्लीकेंट्स ऑफ 2000 शेयर्स वर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड. Remaining applications were allotted shares on pro rata basis.
All the money due on allotment and final calls were received. कैसे कर रही है कंपनी डिवाइड? क्या कंपनी ने पूरा रिफंड किया एक्सेस? क्या कंपनी ने प्रो रेटा किया पूरा, कि पार्टली रिफंड पार्टली प्रो रेटा? व्हाट इज द सिचुएशन? Partly refund, partly refund, partly pro rata. Partly refund and partly pro rata. Can you tell me out of this 26,000, how many shares is the company refunding the money on? 2000. 2000. 2000 क्लियर कट वहां पे दिया हुआ है. इसका अर्थ क्या हुआ? जो 2000 रिफंड किए, रिजेक्ट किए हैं, उनको एक भी शेयर अलॉट हुआ है? नहीं. नहीं बेटा नहीं. उनको तो बोला घर पे जाओ, पिक्चर देखो, आईपीएल देखो, 2 सुपर ओवर देखो, दिमाग का दही बनाओ. ठीक है, ऐसा करो आप लोग. तो 2000 शेयर्स को आपने घर पे बिठा दिया रिफंड करके. बाकी कितने बचे आपके पास? 4000. क्या 4000? हाँ सर बरोबर 4000. 24,000 एप्लीकेंट्स बचे हैं. उनको आपने कितना अलॉट किया है? 20,000. बराबर है. टोटल 26,000 एप्लीकेशन आए थे. 4,000 इज एक्सेस. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. दैट्स करेक्ट. बट ओवरऑल 26,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए थे. आपने तो 20 ही इश्यू किए थे. बराबर है. उस 26,000 में से 2,000 को रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया आपने. ये बात समझ में आई? 6,000 को नहीं किया, 2,000 को ही रिफंड किया. तो बचे हुए 24,000 को आपने प्रो रेटा अलॉट किया है. दिया हुआ है क्वेश्चन में वहां पे. रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल. सो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दिस एक्सेस? ये बी कैटेगरी का एक्सेस का क्या करेगी कंपनी? विल इट रिफंड और विल इट ट्रांसफर टू अलॉटमेंट? अलॉटमेंट. इसका एक्सेस जाएगा अलॉटमेंट में. व्हाट अबाउट इसका एक्सेस? ए कैटेगरी का एक्सेस का क्या होने वाला है? रिफंड होने वाला है. ये बात पहले घुसी दिमाग में सबके. This part, all of you are clear? We have done it earlier also, if you remember. Now, let's proceed with the problem. Let's proceed with the problem number 1. First entry. Who will answer? Meeti. Tell me the first entry. Bank to equity share capital. अरे बाप. Sorry. Application. ऐसा कैसा चलेगा? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ये एंट्री तो अभी नींद में से उठा के पूछो तो भी आनी चाहिए. हर एक सम में किया है हमने. बैंक टू एप्लीकेशन कितना आएगा अमाउंट? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मीति. 10 into 26,000. How much you are asking on application? 10 rupees. 10 rupees into 26,000 shares. Perfect. 26,000 shares into 10 क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है. ओके, लास्ट सम में हमने अंडर सब्सक्रिप्शन का देखा, अभी हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं. तो 2,60,000 आ जाएगा. 26,000 into 10. 2,60,000. This is application money received. Application money received. सेकेंड एंट्री यशवी पटेल जी बताइए मुझे. सेकेंड एंट्री वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्री. Equity share application to equity share capital. बराबर. To equity share allotment. वेरी गुड. और जो ट्रांसफर करेंगे टू बैंक. वेरी गुड. ऑसम. This is the most important entry. Equity share application to equity share allotment. Equity share application to equity share capital तो करते ही हो आप ट्रांसफर. उसके बाद एक्सेस का भी आपको टेक केयर करना है. क्या मुझे बताओ, पूरा एक्सेस रिफंड हो रहा है? पूरा एक्सेस रिफंड कर रहे हो क्या? नो. नहीं. पूरा एक्सेस प्रो रेटा कर रहे हो क्या अलॉटमेंट में? नहीं. थोड़ा रिफंड है, थोड़ा प्रो रेट है. 2,000 शेयर्स पे रिफंड है, बाकी का प्रो रेट है. तो जो रिफंड है वो टू बैंक, पैसा चुका दिया आपने. समझ में आ रही है बात? और जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया उसका टू अलॉटमेंट प्रो रेटा. अभी ट्राई टू टेल मी द अमाउंट्स. यशवी पटेल, हम एप्लीकेशन में कितना लिखेंगे? 2,60,000. परफेक्ट. हाउ मच यू विल पुट अंडर कैपिटल नाउ? 2 lakh. वेरी गुड. 2 लाख कैसा? 20,000 into 10. रिक्वायर्ड कैपिटल में हमारे इश्यूड शेयर से ज्यादा हम कर ही नहीं सकते, हमारी लिमिट ही उतनी है. 20,000 into 10, that will be 2 lakh rupees in the capital. Capital cannot be more than 20,000 at any cost. Not possible.
उतना ही शेयर्स इश्यू किया, उतना ही पैसा कैपिटल में डाल सकते हो। तो एक्सेस का क्या करेंगे हम लोग यशवी? हाउ मच इन कैपिटल एंड हाउ मच इन, पहले बैंक बताओ, रिफंड कितना करोगे आप? 2000 शेयर का रिफंड किया ना। हाँ 2000 इंटू व्हाट? 10 रुपया एप्लीकेशन भरा था, उनको बोला घर पे बैठो आईपीएल देखो। बाकी जो अलॉटमेंट में गया उसका क्या करना? 40,000। हाँ 40,000 बैलेंसिंग फिगर। मैं इधर 4000 इंटू 10 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो गलत होगा। क्या ये 40,000 इज 4000 इंटू 10 सिर्फ 4000 शेयर का 10 रुपया इसके अंदर, कि सभी 20,000 शेयर का 10 रुपया पड़ा हुआ है? बताओ। 20,000 शेयर। सभी 20,000 शेयर जिन्होंने, जिसको अलॉट हुआ है, सबके शेयर्स का एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका मीनिंग समझा? ये 40,000 का सबको। What is the ratio? What is the ratio of pro rata? What is the ratio of pro rata? 6:5. 6:5। तो जिसने 6 शेयर अप्लाई किए उसको कितने अलॉट हुए होंगे? 5। जिसने 12 अप्लाई किए उसको कितने अलॉट होंगे? 10। तो उन सभी लोगों का एक्सेस पैसा ये 40,000 के अंदर पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है कुछ? सर रेशियो कैसे कैलकुलेट करें? रेशियो कैसे कैलकुलेट करें? 24,000 to 20,000 is the ratio। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी? नम्र दोषी। हाँ सर, हाँ सर, मुझे कौन सा अमाउंट, मतलब कौन सा शेयर्स लेना था वही नहीं पता। इधर भाई बनाया तो है, ये क्या है? बी कैटेगरी, ये प्रो रेटा, ये रेशियो। ए कैटेगरी को तो रिफंड ही कर लिया, उसका तो शेयर्स ही कैंसिल हो गया। अभी बढ़ते हैं आगे। दिस इज योर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस एडजस्टेड। थर्ड एंट्री, एंट्री नंबर 3। Who will answer this? कौन बचा अभी? यादोशी। चलो थर्ड एंट्री बताओ मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एंट्री, थिंक एंड टेल मी, थर्ड एंट्री क्या होना चाहिए? यादोशी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यस। इक्विटी शेयर कैपिटल। यस। और कुछ? बस। बस मैं पेट भर गया? कंपनी लालची है, और भी कुछ लेगी? तो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज अ ब्रेकअप? ब्रेकअप में भी दिखाया नोट में। क्या आएगा बताओ मुझे और गाइस? शेयर शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम। ओके, जब आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो तो आप कैपिटल से क्यों संतुष्ट हो? प्रीमियम भी ले लो। ओके, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। अच्छा, अमाउंट्स क्या होंगे? मोक्षित, कैन यू टेल मी द अमाउंट्स ओवर हियर? Yes, sir. In equity share allotment, it will be 50 into 20,000. So why 20,000? Why not 26 or 24? So pro rata basis पे हो गया ना? वो तो हो गया, अभी ऊपर का एक्सेस सब मलाई निकल गया। अभी सबको कितने पे भरना है पैसा? All of them are supposed to pay on 20,000 shares. Okay? So 20,000 multiplied by क्या बोला तुमने? 50. बराबर है। That comes to how much? 10 lakhs. और फिर उसमें से कैपिटल में कितना जाएगा? Equity share capital 8 lakhs. वेरी गुड। 20,000 into 40, 8 lakhs। और 2 lakhs में 20,000 into 10, 10 रुपया प्रीमियम। ओके, तो थर्ड एंट्री में ड्यू अमाउंट के एंट्री में आपको प्रीमियम एडजस्ट करना है, याद रखना है ये। दिस इज अलॉटमेंट ड्यू एंड प्रीमियम एडजस्टेड। अलॉटमेंट ड्यू एंड प्रीमियम एडजस्टेड। ओके, एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4, entry number 4, Krish Doshi, can you tell me entry number 4? Bank account debit to equity share allotment account. Bank account debit to equity share allotment account. Are there any defaulters, guys? Please check. Are there any defaulters? No defaulters. बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया शेयर होल्डर, सबका नाम बढ़िया, सबका काम अच्छा, सब लोग ने सब पैसा भरा हुआ है। तो बैंक टू अलॉटमेंट, कोई सीआईए का लफड़ा नहीं है। अमाउंट क्या होगा यहाँ पे?
9,60,000. Why 9,60,000? 10 लाख चाहिए ना यार. 40,000. हाँ, ऐसे दिमाग चलना चाहिए. देखो बंधुओं, ऊपर 40,000 रुपए एक्स्ट्रा आ चुके हैं ना अलॉटमेंट में, वापस मत वसूल लेना. सब लोग भर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं उठाना अपने को, है ना. ऑलरेडी 40,000 रुपए एक्सेस था कंपनी में, अभी 10 लाख चाहिए अपने को, तो 10 लाख में से 40,000 तो मिला हुआ है. हाउ मच यू विल रिसीव नाउ? सो 9,60,000. 9,60,000. ओके, 10 lakh में से already we have received 40,000. So we'll receive now 9,60,000. This is allotment received. Allotment received. Okay. First call. Tatvesh Doshi. Can you tell me the entry for first call due? Yes. Yep. Equity share first call to equity share capital to share premium. Very good. Equity share first call account debit to equity share capital account to share premium. ये कैसा? हर बार तो प्रीमियम अलॉटमेंट में रहता था, अभी इधर भी कैसा टपका? कैसे कैसे प्रीमियम हर जगह कहाँ पे दिख रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? सबको समझ आ रहा है कि नहीं? Are you understanding? Why did I credit premium? Why did we credit premium in the fifth entry? Are you all understanding? Why? Because बोलो यार. सर 10-10 रुपया ब्रेक करके दिया. 10-10 रुपया ब्रेकअप है ना यहाँ पे प्रीमियम का. शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, प्रीमियम आधा आधा है, आधा विद अलॉटमेंट, आधा विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ओके, कैन यू टेल मी द अमाउंट सत्वेश? फर्स्ट कॉल में कितना लिखोगे आप? 12 lakh, 10 lakh, 2 lakh. Very good. 20,000 into 60, that will be 12 lakhs. 20,000 into 50, that will be 10 lakhs. And 20,000 into 10, that will be 2 lakhs. Is that clear? So equity share first call to equity share capital is first call due and premium adjusted. Okay, first call due and premium adjusted. So if you got that. अच्छा, प्रीमियम कौन से एंट्री में एडजस्ट करना है? रिसीव्ड अमाउंट में कि ड्यू अमाउंट में? ड्यू अमाउंट. ड्यू अमाउंट, हमेशा ड्यू अमाउंट. रिसीवेबल कैपिटल का कजिन ब्रदर, प्रीमियम इज कैपिटल का कजिन ब्रदर. इधर कैपिटल क्रेडिट, उधर प्रीमियम क्रेडिट. ओके, मुन्ना भाई एंड सर्किट. कैपिटल एंड प्रीमियम आर लाइक मुन्ना भाई एंड सर्किट. ओके, चलो नेक्स्ट वन. रिसीव्ड द अमाउंट. खुशी दोशी, कैन यू टेल मी द सिक्स्थ एंट्री? Bank to equity share first call. Bank to equity share first and final call. Perfect. क्यों? क्योंकि यार कॉल इन अरियर तो है ही नहीं, कोई डिफॉल्टर है ही नहीं, तो बैंक टू फर्स्ट कॉल हो गया. बढ़िया है. अमाउंट क्या होगा खुशी दोषी, बताओ. What amount? 20,000. 12 लाख. एक जीरो का अगर पड़ता है 12 लाख रुपीज है, जो पूरा ऊपर रिसीवेबल था वो अभी रिसीव किया, 12 लाख रुपए. अच्छा, इसमें कोई एक्सेस है किसी का? फर्स्ट कॉल में किसी का एक्सेस है? Does anyone have any excess transfer to first call? Check. एक्सेस किधर तक था? एक्सेस खाली अलॉटमेंट तक था, 40,000. खत्म हो गया, ये सबने भर दिया है ना ऊपर का पैसा. तो अभी फर्स्ट कॉल तो सबको एट पार है, सबको सेम रुपया भरना है, तो भर रहे हैं सब लोग 12 लाख रुपए. दिस इज फर्स्ट कॉल रिसीव्ड. फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड खादू पीदू राज की. Time is over. No defaulter, no call in arrear. Okay, no forfeiture. What was the important part in this problem? Did you understand? What was the important part in this problem? क्या था अलग? क्या था सम में? प्रीमियम. प्रीमियम अलग. कॉल पे भी प्रीमियम. प्रीमियम अलग था. प्रीमियम नॉर्मली अलॉटमेंट के साथ होता है, यहाँ पे ब्रेकअप करके दिया, बाकी तो सब किया हुआ था. वगैरह तो किया हुआ. यार इसमें भी कॉल इन अरियर होता. हाँ,
तो लास्ट में हम लोग जो प्रीमियम का दिखाता है ना, कैंसिल करते हैं नॉट पेड, तो वो हाँ। बने आता ना उसमें भी। वो भी आता ना 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। सर फिर प्रीमियम में प्रो रेटा हम लोग अप्लाई करते हैं? प्रीमियम में प्रो रेटा हाँ वो करना पड़ता, अगर अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियाज है तो नोट बना के हम लोग करेंगे ना, वैसा भी सम है आगे, आई थिंक करेंगे, आगे आएगा। अभी ले लो नेक्स्ट सम ले लो, लास्ट सम फॉर द डे, सम नंबर 6 ले लो, सम नंबर 6। सब आगे का रूल सेम ही है, इसमें तो आपको जितना हाँ सर हो गया। सर ये लिमिटेड वास हो चुका है अपना। हाँ सर। चलो बाय सर। फॉरफीचर एंड उसका फॉरफीचर। अरे हाँ Bye, बराबर। sir. वेट Hi, sir. हो चुका है, शट अप। Bye, sir. Next sum you take from the textbook 113, page 113, क्लास शीट से आ जाओ, क्लास टेक्स्ट बुक पे आ जाओ, पेज नंबर 113, लास्ट सम फॉर द डे। I'll be sending you an assignment sheet of shares soon, by this week. It will have all the important and various types ka sums which you have to solve and submit by next week. Okay. Shares ka ek separate assignment I'll be preparing. It's very important topic and compulsorily you have to attempt that question. सर छुट्टी कब दे रहे हो? दिवाली का छुट्टी अभी तो सर नवरात्रि का छुट्टी बोल रहा है। हाँ सर दशहरा का 2-3 दिन तो दो सर ऐसा। आज तुमको दिवाली अभी का देखेंगे। तुमको अभी बोर्ड एग्जाम का कुछ मालूम ही नहीं है, तो तुमको आगे कितना छुट्टी मिलेगा यू नेवर नो। अभी सर आप जैसे बहुत देने वाले हो ना, बोलते से रहो। वही तो। सर कुछ मालूम ही नहीं है, छुट्टी दे दो चलेगा। हाँ सर दशहरा का 3 दिन और दिवाली का 5 दिन। आगे जो सर आपने ही छुट्टी नहीं दिया सर, बाकी सबने हाँ छुट्टी सर दिया है सबने एक दे वीक का। दिया है। बराबर। हाँ सर सच्ची, राजीव सर ने भी दिया, रोहन सर ने भी दिया, आप ही बाकी है। हाँ आज छुट्टी है ना, कल छुट्टी है ना राजीव सर का, पक्का ना? पहले दे दिया ना उन्होंने। कल नहीं सर, पहले 3 दिन दिया राजीव सर ने। सर आप हमेशा ऐसा टोपी पहनाते हो। टोपी पहना। Come to sum number 20, last sum, page 113. भैया मेहनत करो मेहनत, अभी टाइम है। आज मैं आगे पीछे जो एग्जाम होएगा ये कर रहा, उसका भी शेड्यूल ऊपर नीचे टाइम है गिरा इसलिए हुआ तो दूसरा चीज करने दो। चलो क्या करने का दूसरा, डांडिया खेलने का, वो तो अभी घर पे बैठा है। सर डांडिया हो रहा है। इधर हो रहा है डांडिया। आप आओगे तो एड्रेस बोलो। ऑनलाइन बोलो मेरे को, जूम पे चैनल का आईडी और पासवर्ड बोलो। घर पे ऐसा मैं मारेगा, तुम उधर मारो, दोनों का लैपटॉप तोड़ते हैं अपन। कम टू सम नंबर 20, बॉस्टन। Boston company is incorporated with an authorized capital of 10 lakh rupees divided into 1 lakh shares of 10 each. Authorized का कुछ काम धंधा है क्या यहाँ पे? नहीं, पता ही नहीं। इसको बिठा दो अलग जगह पे और आगे बढ़ो। The company issued Sum number, 80,000 20. Page 113, sum number 20. The company issued 1 lakh equity share, 80,000 equity shares of 10 each at a premium of 4 per share. इश्यू कितना किया है? 80,000 शेयर्स इश्यू किया है, 10 रुपए का, 4 रुपया प्रीमियम पे। What is a breakup check? Payable 2 on application, 7 on allotment including premium. Including premium म्हणजे काय? Allotment का breakup बता सकते हो आप? 7 on allotment including premium. 3 plus 4. 3 plus 4. 3 towards capital, 4 towards premium. Getting that? 2 on first call and balance कितना बचा? 3 rupees. Check कर लो total बन रहा है क्या? 14, 2 plus 7, 9 plus 4, 11, 9 plus 2, 11 plus 3, 14. बराबर है? 14 rupees is your total. 14 रुपया सबको भरना है। जिसने 14 rupees नहीं भरा उसका शेयर कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसल। Applications are received for 90,000 shares. बताइए मुझे, is it oversubscribed or undersubscribed? Over. अरे भैया ओवर सब्सक्राइब हो गया है।
90,000 का एप्लीकेशन आ गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया है। 2 चॉइसेस होती हैं कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन में। क्या 2 चॉइसेस होती है? या तो वो रिजेक्ट करके रिफंड कर दे, या तो वो प्रोरेटा करे। बताइए इस प्रॉब्लम में क्या हो? एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द मनी वाज रिफंडेड। म्हणजे काय? कंपनी ने 10,000 शेयर को क्या किया? कुछ भी अलॉट किया कि नहीं? जीरो अलॉटमेंट, नील अलॉटमेंट। और बाकी 80,000 को पूरा का पूरा 80,000 दे दिया। बाकी 80,000 को पूरा का पूरा 80,000 दे दिया। इज दिस क्लियर? तो यहां पर कुछ प्रोरेटा का लफड़ा है कि नहीं बताइए? कोई लफड़ा नहीं, यहां पे सिंपली रिजेक्ट और रिफंड करवा दिया। शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, आयुषी, टेल मी द फर्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा अमाउंट? थिंक आयुषी। 1,80,000। वेरी गुड। हाउ डिड यू डू दैट? 90,000 into 2 rupees. शाबाश। 90,000 into 2, नॉट 80। हाँ, ओवर सब्सक्राइब्ड है, ज्यादा आ गया पैसा। नाम था, कंपनी को ज्यादा एप्लीकेशन मिल गया। 1,80,000 1,80,000 का एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट वन, जानवी परमार, बताइए मुझे सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे आप? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यस, बस पूरा हड़प लेने का। 180 आ गया तो जेब में लेके भाग जाने का नहीं। 10,000 रिजेक्ट बैंक। हाँ, तो 2 बैंक जो रिजेक्ट कर दिया उसके लिए 2 बैंक बराबर। यही अगर प्रो रेटा होता तो क्या करते हम लोग? टू अलॉटमेंट कर देते, बराबर है। तो इधर बैंक रिफंड कर दिया है। अमाउंट बताइए जानवी जी, एप्लीकेशन में कितना आएगा? 1,80,000। शाबाश। कैपिटल में 1,70,000 है। नहीं। इश्यूड शेयर्स कितना है? इश्यूड शेयर 80,000। तो ट्रांसफर कितना कर सकते हो? 80,000 into 2 रुपीज, 1,60,000। एप्लीकेशन का खाली 80,000 into 2, 90,000 पे आ गया है। 80,000 पे ही ट्रांसफर कर सकते हो। 10,000 का एक्स्ट्रा है, 2 रुपया। 10,000 रुपया एक्स्ट्रा नहीं है, 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है। 10,000 शेयर्स पे 2 रुपया भरा है ना वो लोग ने, समझा? पक्का? 10,000 into 2, that will be 20,000 is what you refund. 20,000 is what you refund. This is application transfer to capital and excess adjustment. Is this clear? Hitvisha, come on, tell me the third entry. Hitvisha, please. Okay. Nitisha, tell me the third entry. Equity share allotment to equity share capital to share premium. शाबाश, यही तो सुनना था मेरे को। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। एब्सोल्युटली राइट। Why are we crediting premium here? Because premium is always taken in due amount का एंट्री। ओके, तो ये ड्यू अमाउंट का एंट्री में ही क्रेडिट करना है आपको, रिमेंबर दैट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। अमाउंट बताओ मितिशा, क्या होंगे यहाँ पे? अलॉटमेंट में कितना? सॉरी मितिशा, आर यू देयर? 50. How much in allotment? Okay, Heath, can you tell me the entry amount? Yes, sir.
sir. In allotment 5,60,000. How come 5,60,000? It will be 80,000 into 7, right? Yes. Yeah, perfect. 5,60,000. And how much in capital? 2,40,000. कैसा? 80,000 into 3 towards capital है उसमें 2,40,000 and premium. 3,20,000. Perfect. 80,000 into 4. That will be 3,20,000. This is allotment due and premium adjusted. Allotment due and premium adjusted. Okay. Juhi Mehta, can you tell me the fourth entry? ध्यान से पढ़ के बताना. Sorry. Bank to equity share allotment. हाँ, पढ़ो question पढ़ो. Keep a track of question. P ने नहीं भरा. तो फिर अभी एंट्री क्या बनेगा सोचो. Colin arrear. तो एंट्री बोलो पूरा. Bank Colin arrear to equity share allotment. Bank account debit, Colin arrear account debit to equity share allotment account. बात समझ आई कुछ? Tell me, Juhi, the amount. How much will write in allotment? How much will write in allotment? 80,000 into 7. Very good. 80,000 into 7. That is 5,60,000. बराबर है. कुछ एक्सेस तो था नहीं, प्रो रेटा तो था नहीं, तो पूरा 560 एक्सपेक्टेड था. Absolutely right. How you will find out call in arrear? Call in arrear में कितना है? 500 into 7. Very good. 500 into 7, 3,500. अच्छा guys, is there any need to prepare any working note for call in arrear over here? कोई नोट वोट बनाओ? कुछ एक्सेस था? नहीं सर, रिफंड किया था. हाँ, एक्सेस था लेकिन रिफंड हो चुका था. नोट कभी बनाते हम लोग कॉल इन अरियर का जब एक्सेस किधर जाता? प्रो रेटा अलॉटमेंट में होता, तभी हम लोग वो वर्किंग नोट बनाते हैं कॉल इन अरियर. ठीक है, वो यहाँ पे बनाने की जरूरत कतई नहीं है. ठीक है, तो इट इज कॉल इन अरियर सिंपली 500 into 7, 3,500. हाउ मच विल राइट अंडर बैंक? 5,56,500. 5,56,500. This is allotment received and CIA adjusted. Allotment received and CIA adjusted. Who will tell me the next entry? Mahek Rambia. Tell me the next entry. Equity share first call to equity share capital. Equity share first call, rather first and final हो जाएगा ना? नहीं, first call हो जाएगा. First call account debit to equity share capital. बताइए अमाउंट्स क्या होंगे यहाँ पे? 5,60,000. कैसे किया? 80,000 into what? फर्स्ट कॉल पे कितना है? 2 rupees है. Oh sorry. 1,60,000. 1,60,000. How come 5,60,000? 1,60,000. This is first call due. This is first call due. First call due. Now, Mrinmay, can you tell me the next entry for receiving the money on first call? Read the question and tell me. Read the question. Bank account debit. Call in arrears. Very good. To equity share first call. Perfect. Bank call in arrear to equity share first call account. बराबर है? ऐसा लगता है किसी ने तुमको किडनैप कर लिया, रैंसम मांग रहा है. चलो बोलो मेरे को अभी क्या होएगा आपका कॉल इन अरियर का? एक मिनट. हम 1,300 into 1,300 into 2 rupees. Perfect. Why 1,300 into 2? Did all of you understand this? Why 1,300 into 2? अभी तक तो 500 शेयर्स ही थे डिफॉल्ट में. अभी क्यों भी ज्वाइन हो रहा है अपने 800 शेयर्स के साथ? कैन यू गाइस सी दैट? So total defaulting shares are 1,300.
समझ आ रही है बात? So 1300 into 2, 2600 is CI. Absolutely right. Can you tell me the amount of first call? How much you will write in first call, Minmay? 2600. अरे वो तो हो गया कॉल इन अरियर. फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? Sorry. 1,60,000. Absolutely right. 1,60,000. How much you'll write under bank? 157,400. 157,400 will go under bank, right? Isha Shah, tell me the next entry, final call. Yes, sir. It would be equity shares final call to equity shares capital. Equity shares second and final call to equity share capital amount. Amount क्या होगा? 2,40,000. How come 2,40,000? It will be what? 80,000 shares into 3. 3 rupees. Final call ka 3 rupees. That is 2,40,000. Correct? So 80,000 into 3, 2,40,000. This is the due amount. Perfect. Next entry. Maybe मनन मेहता बताओ मुझे नेक्स्ट एंट्री 8th एंट्री क्या होगी इसकी? सर बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल. हाँ कल्याण पहुंच गए. बाजू वाला लिखेगा ना, आपने को क्या फर्क? हाँ. बाजू वाले को स्कोर करना है बोर्ड. हम लोग को तो ऐसी फ्री सीट मिल जाएगी सब जगह, है ना? मनन मेहता इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल. बैंक कॉल इन अरियर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. घाई मत करो, सोच के बताओ. अब मुझे बोलो कॉल इन अरियर में कितना लिखोगे? $300 into. सोचो यार, कितने शेयर्स हैं डिफॉल्टिंग? Who is not paying? PNQ. PNQ के मिला के कितने होते हैं शेयर्स? 300 शेयर्स होते हैं. 1300 5 + 8 800 और 500 1300 शेयर्स है. 1300 शेयर्स पे कितना? 20. कितना? सर वो नीचे वाला सब देख रहा है यार. टोपो થઈ ગયો છે મને. 1300 shares into what? 3 rupees. 3 rupees. अभी ऊपर वाले एंट्री में इधर 3 दिख रहा है, उधर तो देख के बोल सकता है. 1300 into 3 3,900. सेकेंड कॉल में कितना आएगा? 2,40,000. 2,40,000. सेकेंड कॉल में इट विल बी 2,40,000. बराबर है. एंड बैंक में कितना आएगा? 2,36,100. 2,36,100. Is that clear? Okay. Next one. Come to next part. अभी फोर फीचर अपना सॉरी सेकंड कॉल तक तो पहुंच गए. Above shares were forfeited and reissued for 9 each past journal entries. Above shares were forfeited. Above shares were forfeited मतलब कैंसिल कर दिया, कंपनी को गुस्सा आ गया. तो बताओ मुझे 4 फीचर एंट्री क्या होगा? हितविशा चलो बताओ. What will be your 4 फीचर एंट्री? ध्यान से. इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर forfeiture. नॉर्मली तो यही एंट्री हम लोग करते हैं, तो वही लिखना. इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर forfeiture अकाउंट. अभी एक महा क्वेश्चन पूछना है आपको. कौन बनेगा करोड़पति का? महा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 7 करोड़ रुपए का. व्हाट इज दैट क्वेश्चन? कम ऑन. प्रीमियम. व्हाट इज द rule for premium? Premium once received should not be debited, and not received should be debited. अपनी अंतरात्मा से पूछो कौन कौन डिफॉल्ट कर रहा है. P and Q दोनों ने डिफॉल्ट किया है.
ठीक है, अब बताओ मुझे सोच के, पी ने क्या भरा था? एप्लीकेशन। सिर्फ एप्लीकेशन भरा और भाग गया। डिड ही पे द अलॉटमेंट? नो। तो प्रीमियम किसके साथ था? अलॉटमेंट के साथ। डिड ही पे द प्रीमियम? नो। नो। तो प्रीमियम पे नहीं किया है इसने, बराबर है। व्हाट अबाउट क्यू? व्हाट अबाउट क्यू? भरा था प्रीमियम। क्यू ने क्या भरा था? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अलॉटमेंट भरा है मतलब प्रीमियम भी भरा है, अपने को तो प्रीमियम चाहिए मेन यहाँ पे, तो प्रीमियम भरा है इसने। तो अभी रूल क्या है अपना? once received should not be debited, but not received then it should be debited, बराबर है। नॉट रिसीव्ड का मतलब फेक प्रॉफिट पड़ा है, उसको डेबिट करके नलिफाई करो। रिसीव्ड है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जेन्युइन प्रॉफिट है, लेट इट बी इन द बुक्स एज इट इज। ओके, धृतिशा बताओ मुझे, Yes, कितने का डेबिट करना है? 13,000. एक मिनट, यू आर टेलिंग मी अबाउट कैपिटल आई थिंक, मुझे बताओ। अच्छा चलो पूरा अमाउंट बोल दो मुझे। कैपिटल में कितना आएगा? 13,000. 1300 into 10 rupees. All of you got that? Why 1300 into 10? कैपिटल में प्रीमियम नहीं घुसा देना, कैपिटल में फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। 1300 into 10, 10 से क्रेडिट हुआ है, अभी 10 से कैंसिल कर दो। 1300 into 10, 13,000. All of you got that? Okay. Tell me about प्रीमियम। किसका प्रीमियम डेबिट होगा ये बताओ धृति, पी का कि क्यू का? पी का, क्योंकि वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड। पी ने नहीं भरा है, डेबिट करो, जक मार के करो डेबिट, ठीक है। तो कितना शेयर था पी का? 500 into 4. 500 multiplied by 4, that makes it 2,000. बराबर है। टू कॉल्स इन अरियर्स, कितना आएगा कॉल्स इन अरियर्स? 10,000. ये रहा 3,900, सब ऐड करो, प्लस 2,600 प्लस 3,500, टोटल किया कितना आया? 10,000। Yes, sir. Please check this 10,000 and how much will be in forfeiture? 5,000. 5,000. 5,000 is forfeiture. This is forfeiture of 1,300 equity shares. Did you get it? Forfeiture of 1,300 equity shares. ये forfeiture कहां से आया? इसका ब्रेकअप भी देख लो। 5,000 रुपए कहां से टपके? ये आपके 5,000 ऑफ शेयर forfeiture। इसमें किसका पैसा पड़ा है? पी का पड़ा है, क्यू का पड़ा है। मुझे बताओ पी के कितने शेयर्स थे? 500। और पी ने क्या भरा था? एप्लीकेशन। कितना भरा होगा एप्लीकेशन पे भाई ने? 2 रुपया, तो 1,000 रुपया, बराबर है कि नहीं? 1,000 रुपया भरा, भाग गया 500 शेयर्स पे। ओके, प्रो रेटा तो कुछ था नहीं यहाँ पे। 500 शेयर्स पे he paid 2 rupees and 1,000 rupees and gone. How many shares of Q were there? How many shares of Q were there? 800. 800. भाई ने क्या भरा है? Q भाई ने क्या भरा है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉट, मतलब 2 + 7 9 रुपया भरा है, तो 800 into 9 7,200 होना चाहिए। बट 7,200 और 1,000 कितना होता है? अरे बाबा, तो लोचा हो गया। प्रीमियम। क्या गड़बड़ हो गई यहाँ? उसने तो भरा ही है 9 रुपया, 800 into 9 किया तो 7,200 होता है, और 7,200 और 1,000 टोटल 5,000 तो ही होता है, 8,200 हो रहा है। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? प्रीमियम लूं कि नहीं लूं, बताओ मुझे अभी। नहीं लो। प्रीमियम नहीं लेता हूं, चलो तुम बोलते हो तो प्रीमियम नहीं लेता हूं। प्रीमियम कितना था? 4 रुपया हटा देता हूं तो 3 रुपया। 3 रुपया भरा है उसने कैपिटल का, 2,400, फिर भी नहीं हो रहा है। अरे ऐसा कैसा? अलॉटमेंट में 7 था ना, मैंने 4 हटाया, 3 ले लिया। एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन भी भरा है, तो भाई ने यहाँ पे देखो कैपिटल की तरफ कितना भरा है? कैपिटल की तरफ 2 ऑन एप्लीकेशन भरा है एंड 3 ऑन अलॉटमेंट भरा है। सी वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आप शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो
तो उसमें वो ही पैसा देखो जो उसने कैपिटल की तरफ भरा है। कैपिटल की तरफ क्या भरा है? 2 ऑन एप्लीकेशन एंड 3 ऑन अलॉटमेंट। 5 रुपया भरा है, 5। विल यू टेक प्रीमियम ओवर हियर? टेल मी, will you take premium at the time of forfeiture? No. So it will be 800 into 5, that comes to how much? 4000. अब बैठा बराबर 4 plus 1 5. Okay, 4 plus 1 5. Is that clear? कंपनी ने हड़प्पा उससे 9 रुपया ही है, 4 रुपया प्रीमियम में पड़ा हुआ है और 5 रुपया forfeiture में पड़ा हुआ है। Is this clear? हेलो, समझा कि नहीं? किसी को डाउट? टेल। शेयर फॉरफीचर में कौन सा प्रॉफिट पड़ा होता है? द अमाउंट टुवर्ड्स कैपिटल की अमाउंट टुवर्ड्स प्रीमियम की बोथ? बोलो, शेयर फॉरफीचर में कौन सा प्रॉफिट पड़ा हुआ? टुवर्ड्स कैपिटल। अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल, खाली पैसा जो कैपिटल की तरफ आया हुआ है वही पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी री इश्यू करना है तो 10th एंट्री में री इश्यू करते हैं हम लोग। वंशी कामदार, कैन यू टेल मी द री इश्यू एंट्री? Yes, sir. Reissue. Yeah. Reissue. Reissue entry. Simple. तो मैं नहीं समझे आपने। अरे रीइश्यू एंट्री नहीं है। रीइश्यू नॉर्मल इश्यू 9 रुपीज पे इश्यू किया है खाली शेयर। अरे यार, रीइश्यू का मतलब पूरा पैसा मांग रहे हो, साथ में पैसा आया, ओनर ने पैसा डाला तो क्या एंट्री होता है बिजनेस में? फर्स्ट जर्नल एंट्री 11th स्टैंडर्ड। कैश टू कैपिटल। तो इधर क्या करते हो? बैंक टू कैपिटल। व्हाट वंशी? बैंक टू कैपिटल, और बीच में क्या करना है? क्या प्राइस पे रीइश्यू कर रहे हो? What price are you reissuing the shares? 9 rupees. 9 rupees. So is it a gain or a loss? A loss. Loss. तो कौन से अकाउंट में से लॉस उठाओगे आप? From which account will you take that loss? Tell me. रीइश्यू में लॉस कौन से अकाउंट में से निकाला जाता है? Anyone? Share forfeiture. Share forfeiture. Bank account debit, share forfeiture account debit to equity share capital. Okay, loss तो share forfeiture से ही निकालना है आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeiture account debit to equity share capital। कितना आएगा इस बार बैंक में? जैनम शाह, कैन यू टेल मी द अमाउंट इन बैंक? सर बैंक में 10800। ऐसा मिला 1300 into 9 108 नहीं into आता 9 117 आता 117। अच्छा 117। शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा? तो 1300 into 1 that is 1300। ओके, एंड शेयर कैपिटल में 1300 into 10 that is 13,000। 13,000 rupees। Is that clear? 13,000 rupees will go under your capital। Is that clear? Now the last part is टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश मुफ्त वाली एंट्री। What is that extra entry? What do we need to pass? Share forfeiture to capital. Share forfeiture account debit to capital reserve account। ये तो करना ही है आपको। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना लिखोगे? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 3,700। सिंपल है। इधर प्रॉफिट हुआ था 5,000 का, माइनस सबका लॉस 1300 रुपया, ये सब ट्रैक करो। 3,700 is what you transfer share forfeiture to capital reserve, balance in forfeiture
transferred to capital reserve. Balance and forfeiture transferred to capital reserve. That's it. समझा? सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस. ओके, यही अगर रीइश्यू लॉस के जगह प्रीमियम पे होता तो कितना ट्रांसफर करते शेयर फोरफीचर टू कैपिटल? 5,000. व्हाट इफ द रीइश्यू वुड हैव बीन एट पार? 5,000. स्टिल यू वुड हैव ट्रांसफर्ड 5,000, क्योंकि यहाँ पे लॉस है तो आपने लॉस माइनस करके नेट अमाउंट ट्रांसफर. समझ में आ गया? वंशी वर्क हार्ड ऑन दिस. 1-2 दिन में आपको ऑब्जेक्टिव्स का भी पेपर आ जाएगा, मोस्टली बिफोर वेडनेसडे ओनली. चलो बोलो, इसमें कोई डाउट्स? एनीवन, एनी डिफिकल्टी टिल नाउ? टेल मी. प्रीमियम कहाँ ध्यान रखना है? देखो, प्रीमियम सम में वैसे 2 जगह पे आ सकता है, या मैक्स टू मैक्स 3 जगह पे. प्रीमियम एक तो पहले इश्यू के वक्त ट्रांसफर एंट्री में, ओरिजिनल इश्यू में मोस्टली इट लाइज विद अलॉटमेंट. नंबर 1 इट लाइज विद अलॉटमेंट. अलॉटमेंट के ट्रांसफर एंट्री में दिखेगा ड्यू अमाउंट की एंट्री. नंबर 2 फोरफीचर एंट्री. उधर रूल क्या है? वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड. एंड नंबर 3 री इश्यू में भी अगर प्रीमियम है तो वहां पर भी दिखेगा. 3 जगह पे प्रीमियम आ सकता है बस, और कहीं नहीं. ओरिजिनल इश्यू, फोरफीचर एंड री इश्यू. उसमें भी 2 जगह पे ही आता है मैक्स टू मैक्स. री इश्यू कभी प्रीमियम पे नहीं होता, री इश्यू जनरली लॉस पे होता है. तो ओरिजिनल इश्यू में आएगा और फोरफीचर एंट्री में. बात समझ आई? टेल मी. स्टॉप एट दिस पॉइंट देन. ओके, आपको असाइनमेंट अभी मैं आज चाहिए तो आज, नहीं तो फिर मे बी नेक्स्ट लेक्चर तक मिल जाएगा. 12 ऑड सम्स, 10-12 सम्स का असाइनमेंट होगा. ओके, आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करने हैं शेयर्स के. लेट यू नो उसमें से क्या क्या सॉल्व करना है. शीट मिल जाएगी. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू वेट एंड आस्क मी द डाउट्स प्लीज. डोंट कीप देम पेंडिंग. एंड इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव. टाटा बाय बाय. Bye, sir. नहीं